Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Chapter number 2, and the topic is plains. We will first of all we will talk about its definition. That is based a vast, less steepy, and comparatively even surface of land is called a plain. जिससे मुराद है कि एक बहुत ही वसी, कम ढलवानदार, यानी इस तरह से ढलवानदार नहीं जिस तरह से माउंटेन्स होते हैं, तो कम ढलवानदार और निस्बतन हमवार सतह को हम इवन सरफेस को हम ज़मीन की प्लेन कहते हैं, मैदान कहते हैं. नाउ we can divide the plain of Pakistan into two parts. The first one is upper Indus Plains and the next one is lower Indus Plains, and after that we will discuss the both topics one by one. We will discuss the upper Indus Plains characteristics like location, Punjab meaning, famous for Doab. These are the main focusing points we are going to discuss in our today's topic. So I have drawn a map to show you. You can find out any type of place by drawing such a type of map and plus sign which is showing the directions like this, and after that you can put the names of different places like this. Okay, now let's have a look on a map of Pakistan to find out the different places and the exact location of province Punjab. Dear students, this boundary is showing and representing the province of Punjab. The green color is showing that this land is very fertile, and after having the complete knowledge of this and watching this map, we will talk about its characteristics. Like the first one is location. The plain extends from the south of Potowar Plateau. That means कि हम पोटोवार प्लेट्यू पे अगर मौजूद होते हैं और हम इस पे प्लस साइन ड्रॉ करें तो इसकी जो साउदर्न साइड है, नीचे वाली साइड है, उसकी तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पे पंजाब प्रोविंस जो है वो नज़र आ रहा है. Like this. This place is starting from the Potowar Plateau and it's going to be an end on Mithankot. Mithankot is the place where all the rivers, like you can see over here, these lines are representing the rivers of Pakistan. The longest river of Pakistan, that called the Indus River, and that's why these plains are called the upper Indus Plains. That means जो ऊपर वाली साइड पे plains मौजूद हैं उनको हम अपर इंडस प्लेन्स कहेंगे, और जो नीचे मौजूद हैं उनको हम लोअर इंडस प्लेन्स कहेंगे, जो कि सिंध प्रोविंस पे बेस्ड है. तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि लोकेशन जो है इसकी ये होगी कि पंजाब के नॉर्थ साइड पे पोटोवार प्लेट्यू है, जबकि इसकी साउदर्न साइड पे सिंध प्रोविंस मौजूद है, जो कि मिठनकोट पर आकर ख़त्म हो रहा है. ये मिठनकोट ये वही इलाका है जहाँ पे पंजाब हमारा प्रोविंस जो है, जो पंजनद का मकाम है, जहाँ पे पांचों दरिया, द 5 rivers, 5 tributaries are joining the Indus River. So that means its exact location is towards the north direction. Towards the north direction there is Azad Jammu Kashmir. Towards the west direction there is KPK provinces located. Towards the south side of Punjab, Sindh province is located, and towards the eastern direction India is located. Okay, now talk about its the word Punjab means. The second one, our main point was what's Punjab meaning, why we call it Punjab. Punjab basically means 5 rivers, signifying the 5 rivers Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. These rivers are lifeblood of this province. These rivers are lifeblood for the province. क्योंकि ये पांचों दरिया जो हैं जब इस खत्ते ज़मीन को सैराब करते हैं तो यहाँ पे ये अनाज घर के नाम से
लैंड ऑफ ग्रेन्स इसीलिए पॉपुलर हुआ ये वाला रीजन कि यहाँ पे फसलें जो थीं या ज़राई लिहाज से, ज़राई नुक्ता नज़र से, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लैंड है। तो ये जो है ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये हमारा सूबा है। अब हम बात करेंगे इसके फेमस फॉर है ये, चूँकि जो भी इलाका एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से रिच होता है वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री की प्रमोशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमारी जितनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड क्रॉप्स हैं या कैश क्रॉप्स हैं, दोनों ही हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारी इंडस्ट्री की प्रमोशन भी इसी प्रोविंस पे बेस करती है। नेक्स्ट, talk about the Doab. What is Doab? Doab. Basically, Doab is a place which is situated in between the two rivers. Like एक से दूसरा जो दरिया है उसके दरमियान जितनी ज़मीन मौजूद होगी उसे हम दोआब कहेंगे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे द फर्स्ट वन इज़ सिंध सागर दोआब आर थल डेजर्ट। ये जो सिंध और जेहलम के दरमियान जो जगह मौजूद है, जैसे आप देख सकते हैं सिंध और जेहलम के दोनों रिवर्स के दरमियान जो जगह मौजूद है वो सिंध सागर दोआब कहलाएगी, जो कि बहुत ही रिच फर्टाइल लैंड होती है, क्योंकि इसको दो दरिया जो हैं वो सैराब कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें चज दोआब है, चज दोआब जो है वो चनाब और जेहलम के दरमियान मौजूद है। इसी तरह से रचना दोआब है जो कि रावी और चनाब के दरमियान है। और इसी तरह से बारी दोआब है, और ये जो बारी दोआब है ये रिवर सतलुज और रावी के दरमियान मौजूद इलाका है। तो ये आज की हमारी जो है प्लेन के हवाले से आपने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। ये लोकेशन आपने इसी तरह से प्लस साइन ड्रॉ करके यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड द पोटवार प्लेटू इज़ लोकेटेड, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन इंडिया, टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन KPK, दिस एरिया इज़ कॉल्ड KPK, towards the southern direction Sindh province is located. Okay, thank you so much.